Good morning, students. Myself, Alpana, welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on the cell, class 9, fundamental unit of life, bio. In our last classes, I have completed the topics definition of the cell, discovery of the cell, parts of the cell, and in this video, we will study about cell organelles. Clear? In this video, I will explain you about the cell organelles. I have explained you about parts of cell. In that, I have told you about the nucleus, I have told you, cytoplasm, cell membrane, cell wall. Clear? In the cell membrane, which we also called it plasma membrane, and cell wall, which is only present in the plant cell, and nucleus, which is present in the center of the cell, and cytoplasm. Clear? And in this video, we are going to study about cell organelles. Cell organelles, this play very crucial role in the cell, and it is very important. Cell organelles are very important for cell. They do different functions in the cell. Okay, so one by one we will study about this cell organelles. So see, this is the cell organelles. See, first one is endoplasmic reticulum. First one is endoplasmic reticulum. Second is Golgi apparatus. Golgi apparatus. Third one is lysosomes. Fourth is mitochondria. Fifth is plastid, and the last one is vacuoles. Again I am telling you, listen to me. In this class we will study cell organelles. Clear? Cell organelles. These are our cell organelles. This is endoplasmic reticulum. In short, we are writing ER. Okay. This is endoplasmic reticulum. Second one is Golgi apparatus. Third is lysosomes. And the fourth one is mitochondria, plastids, and vacuoles. Clear? So, one by one we will study. So, first one is endoplasmic reticulum. Okay. First is endoplasmic reticulum. Our first organelle we will study, that is endoplasmic reticulum. See, endoplasmic reticulum, it is a large network of membrane bound tubes, sheets, cisternae, vesicles. Okay, see, this endoplasmic reticulum, it is membrane bound, है ना. कैसा रहता है, जैसे कि दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या रहेगा, इसके बाहर क्या रहेगी, मेम्ब्रेन रहेगी. ओके, क्या रहेगा इसके बाहर, मेम्ब्रेन होगा. दिस ऑर्गेनल्स ना, दिस प्ले very important role. Clear? So see, like this is the cell. Okay, this is the cell. This one is the nucleus, है ना. In my previous video I have explained you about cell. I have told you this is the cell membrane, this one is the cell membrane, or we called it plasma membrane also. Okay, this is cell membrane and this one is the nucleus. सॉरी. तो न्यूक्लियस को जो कवर करता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस को जो कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको. ठीक है. और फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड इनसाइड दिस ना फ्लूइड इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. उसको न्यूक्लियस के अंदर जो था तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. क्लियर? तो see, this is our cell. Now I'll tell you about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is like this. See, like this. Like this structure is our endoplasmic reticulum. Clear? Like this. है ना? See, like this we can see. This is our endoplasmic reticulum. See, when we see the cells in the microscope na, we will see like this. Endoplasmic reticulum will see like this, है ना. इस तरह का दिखता है endoplasmic reticulum. Clear? है ना. वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ज्वाइन रहता है, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहाँ तक ज्वाइन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. क्लियर है ना.
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये देखो लार्ज नेटवर्क है, दिख रहा है, इस तरह का लार्ज नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड भी है, देखो इधर से ये मेम्ब्रेन है, चारों तरफ से इसको मेम्ब्रेन कवर करके रखता है। जैसे सेल को सेल मेम्ब्रेन कवर किया है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर किया है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्या है, मेम्ब्रेन ये बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह का जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्ने। ओके, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्ने। और ये जो इस तरह से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आर द ट्यूब्यूल्स, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैसे रहते हैं, ट्यूब शेप में भी रहते हैं, वो सिस्टर्ने के शेप में रहते हैं, मतलब ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, शीट्स की तरह, देखो इस तरह से। और इसमें वेसिकल्स भी होते हैं, इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे राउंड का, ओवल शेप का थोड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स भी बोलते हैं। तो आई थिंक दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लियर। सी, एंड वन मोर थिंग, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, दिस कनेक्ट्स द पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के ना बहुत सारे पार्ट्स को क्या करेगा, कनेक्ट करता है, ठीक है। और क्या, इट बिल्ड सेल मेम्ब्रेन, दिस इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये क्या करता है, लिसन टू मी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ में मैं तुम लोगों को पहले अभी आप लोगों को मैं पहले बताई कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मैं एंडोप्लाज्मिक के पहले इसलिए बताई कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो ये मेम्ब्रेन बना हुआ है ना, ये किसने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्लियर है ना। एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज RER, है ना, एंड सेकेंड वन इज SER। RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, क्लियर। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑफ two types. One is rough RER, that means rough endoplasmic reticulum, और SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, टू टाइप्स के होते हैं। तो देखो ये रफ क्यों होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जैसे ये दिस इज अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें क्या रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे दाने रहेंगे, जैसे सी हियर आई हैव मेड वन, तो इसमें क्या रहेंगे, ऐसे करके ना, ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा, इस तरह के छोटे छोटे दाने होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया, है ना। और ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स, ओके, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मेन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, इट सिंथेसाइज प्रोटीन। और क्या रहता है, सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि जिसके सरफेस पे क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, मतलब उसमें क्या रहेंगे, ये ऐसे रहेगा, उसमें राइबोसोम्स इज एब्सेंट इन दैट, है ना, उसमें राइबोसोम्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, वो बिल्कुल क्या रहेगा, ऐसे प्लेन सरफेस रहेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल का ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है, जैसे ये प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा था। आई थिंक दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज गोल्गी apparatus, okay, now we will see our next, that is Golgi apparatus, ठीक है। और ये क्या मैं बताई थी, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि कनेक्ट द पार्ट ऑफ सेल, एक चैनल बनाता है कि यहाँ से कोई भी चीज़ होगी जो पास होगी, इस तरह से चैनल बनाएगा कि, है ना, कोई भी चीज़ क्या कनेक्ट करके रखेगा कि ऐसे करके पास होके वो क्या होगा, इससे बाहर भी जा सकता है,
ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है। यू कैन सी, देखो इस तरह का नेटवर्क दिख रहा है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। इसके चारों तरफ क्या रहता है, मेम्ब्रेन है। और ये कैसा होता है, ट्यूब शेप में होता है, ट्यूबुलर होता है, शीट्स में होता है, सिस्टर्ने हैं, जो फोल्ड्स दिख रहे हैं, दिस इज सिस्टर्ने, है ना, वेसिकल्स, दिस ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवल शेप, दिस इज वेसिकल्स। और क्या रहता है कि ये क्या करेगा, कोई भी चीज़ को अगर पास करना, एक चैनल बना देता है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी चीज़ क्या होगा, एंटर या तो बाहर निकलेगा। क्लियर है ना। और क्या बोली मैं कि ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट बिल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, वो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। क्लियर। ये प्रोसेस को हम लोग बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज 2 टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसके सरफेस पे क्या रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर रहता है, दानेदार स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या होता है राइबोसोम्स होता है। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ओके, और क्या रहता है, ये है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसके बाहर में क्या था, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इन दैट राइबोसोम्स आर एब्सेंट, है ना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड और फैट्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सो नाउ वी विल सी अबाउट गोल्गी apparatus. Our next cell organelle is Golgi apparatus. See, तो this I can rub it, है ना, here only I'll make the diagram of Golgi apparatus, है ना. This is clear to all of you. Endoplasmic reticulum is clear to all of you. Now we will see our next topic is Golgi apparatus. See, in this what we have to do, Golgi apparatus, this was discovered by Camillo Golgi. Okay, this is Camillo Golgi has discovered Golgi apparatus. Okay, this is also our second organelle, Golgi apparatus, है ना. तो see, this is also membrane bound structure. Golgi apparatus is also a membrane bound structure. Golgi apparatus is also a membrane bound structure. Like this is our cell, है ना. सेल मेम्ब्रेन से कवर है ना. सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अवर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किससे कवर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है. इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके अंदर जो फ्लूइड है दिस इज साइटोप्लाज्म. दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. ठीक है, लिविंग फ्लूइड होता है ये, है ना. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन, है ना. न्यूक्लियस में पोर्स भी होते हैं, पोरस होता है ये. तो सी, गोल्गी अपैरेटस है. तो ये डायग्राम मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि इसी के अंदर क्या है अपना ये सेल ऑर्गेनल्स होता है. दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड नाउ आई विल टेल यू गोल्गी अपैरेटस. तो कैमिलो गोल्गी हैज गिवन दिस. तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है ये, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब उसके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है. जैसे कि सेल में चारों तरफ क्या है, कवर कौन किया, सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस को कौन कवर किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेम लाइक दैट इसको जो कवर करेगा दैट इज मेम्ब्रेन, है ना. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, सी इट इज लाइक दिस, इट इज प्रेजेंट. इस तरह से होते हैं स्ट्रक्चर्स, है ना. यू कैन सी हियर, सी लाइक दिस, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स हैं. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, है ना, लाइक दिस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दिस इज गोल्गी अपैरेटस, है ना. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोल्गी अपैरेटस बोलेंगे. तो देखो इसमें भी क्या है, दिख रहा है तुम लोगों को ये, यू कैन सी ऑल ऑफ यू, आप लोग सब देख सकते हैं. देखो ये कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना. ऐसे करके क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है. ये वाला पार्ट क्या रहता है, न्यूक्लियस से अटैच रहता है. ठीक है, ये ऐसे करके, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कैसा इस तरह से था ना, इस तरह से ऐसे करके बनाए थे.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ऐसे करके ऐसे बनाए थे ना, है ना। तो ये मैं अभी रब कर देती हूँ क्योंकि ये तो तुम सब लोग आप लोग समझ गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी इसको समझो। दिस इज गोल्गी अपैरेटस। तो इस तरह से रहता है और इसका एक पार्ट कैसे करके ये न्यूक्लियस से अटैच है और दूसरा पार्ट इस तरह से ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ठीक है ना। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है और ये कैसा अरेंज रहता है, यू कैन सी। देखो अब एक के नीचे एक ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल बोलते हैं, है ना। एक के नीचे एक। अब ऐसे जो लाइंस होती है अपन लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, इस तरह से लाइंस क्या बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं ना। ऐसे क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो सेम लाइक दैट दिस apparatus is arranged in पैरेलल वे। देखो इस तरह से ये अरेंज रहता है, एक के नीचे एक पैरेलल रहता है ईच अदर से। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैक्स। ठीक है, क्या है ये, क्या है, गोल्गी अपैरेटस है। और ये जो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है ना, एक के नीचे एक का जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक्स भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट, स्टैक्स। ओके, है ना। स्टैक्स में जो अरेंजमेंट रहता है ना, ये देखो इस तरह से, जैसे ये अपैरेटस है, तो ये अपैरेटस क्या रहेगा, ऐसे पैरेलल अरेंज रहेगा एक के नीचे एक। तो ये स्टैक्स हुआ और ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टर्न्स। क्लियर, क्या बोलेंगे, सिस्टर्न्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और ये भी कैसा रहता है, ये भी वेसिकल्स और सिस्टर्न्स और वैक्यूल्स से कंसिस्ट रहता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स, सिस्टर्न्स एंड वैक्यूल्स। ओके, गोल्गी अपैरेटस, कैमिलो गोल्गी हैज गिवन दिस। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है और ये कैसा, पैरेलल अरेंज रहता है। ये है ना पैरेलल, एक के नीचे एक, तो ऐसे पैरेलल अरेंज रहता है ना, स्टैक्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। और ये किसका किसका कंसिस्ट रहता है, वेसिकल्स का, सिस्टर्ने और वैक्यूल्स का। ठीक है, सी वैक्यूल्स ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, है ना, इस तरह के वेसिकल्स भी होते हैं। ठीक है, और क्या है, सिस एंड ट्रांस फेसेस आर देयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो फेसेस भी होता है, जैसे जो न्यूक्लियस की तरफ इसका फेस है ना, यू कैन सी हियर, जो न्यूक्लियस की तरफ, दिस इज अवर न्यूक्लियस, है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। सिस किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ जिसका फेस होता है, जैसे ये आगे की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ फेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ओके, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, प्लाज्मा, ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, चाहे तो इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका फेस किस तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो ट्रांस किस तरफ रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। आई थिंक दिस गोल्गी अपैरेटस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये गोल्गी अपैरेटस है ना, जो कि कैमिलो गोल्गी हैज गिवन दिस। सो वी हैव कंप्लीटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and Golgi apparatus I have completed, है ना। You have understood also. Again I am telling you, listen to me carefully all of you. Golgi apparatus, तो ये क्या होता है कि क्या रहता है, ये मेन किसने दिया, किसने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्गी। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, एक के नीचे एक पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, पैरेलली अरेंज है, जिसको स्टैक्स बोलेंगे, और ये पूरे को क्या बोलेंगे, सिस्टर्न्स बोलेंगे। ओके, और ये किसका किसका कंसिस्ट होता है, वेसिकल, सिस्टर्ने और वैक्यूल्स का। ठीक है, और क्या रहता है, इसमें दो फेसेस होते हैं। जो न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होता है उसको बोलते हैं सिस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांस। ओके, और ये भी प्रोडक्ट वगैरह को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। इट ऑल्सो स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेजेस द products and all. Okay, now we will see our next topic is lysosomes, है ना। अब अपना next topic क्या है, lysosomes. तो see here this diagram, I'll rub it ना, then I'll make lysosomes. Okay, this all of you know, this is our cell, है ना। ये क्या है, ये अपना सेल है। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि आप लोग इसको भूलो नहीं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो नाउ वी विल सी
लाइजोसोम्स। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, लाइजोसोम्स देखेंगे। तो दिस इज अवर लाइजोसोम्स। सी लाइजोसोम ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन यूज टू कम इन द एग्जाम्स कि वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग, दैट आई विल टेल यू, है ना। सी, तो वन बाय वन वी विल स्टडी। तो लाइजोसोम्स भी क्या है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइजोसोम्स भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इसके भी चारों तरफ क्या रहेगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कवर बाई मेम्ब्रेन। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ना, व्हेन विल सी इन द माइक्रोस्कोप। और ये कैसा था, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, देख ही रहे हो यहाँ पे, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड है और ये कैसा स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह का स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑल्सो। सी, डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये क्या करता है, जो भी वेस्ट वगैरह होते हैं वो सबको क्या कर देता है, डिस्पोज कर देता है, इसलिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। हाउ, आई टेल यू। सी, कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग, है ना। सेल को ये क्या करता है, ये पूरा जो सेल है, लाइजोसोम्स का वर्क क्या है, जो पूरा सेल है, ये सेल को क्या करता है, क्लीन करके रखता है, साफ रखता है सेल को, है ना। जो भी ये सेल्स को वर्न आउट भी करता है, जो भी डैमेज सेल्स वगैरह होते हैं वो सबको वर्न आउट कर देता है। देखो, और दे हैव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या होता है, लाइजोसोम्स में क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, इसीलिए क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। जो भी खराब हो जाती है सेल्स वगैरह या उसमें कुछ भी गंदगी रहती है तो वो सेल्स में वो सबको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है ना। और इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, है ना, दिस पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी, सी दिस सेल, दिस इज द लाइजोसोम, है ना, जैसे ये लाइजोसोम से, तो इसमें क्या रहता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करता है ये लाइजोसोम्स। कुछ भी ना सेल में, अगर कुछ भी, सेल को ये क्या करता है, क्लीन करता है। कैसे, जैसे कुछ भी सेल में अगर गंदगी है ना, कुछ भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर लिया, बैक्टीरिया वगैरह, कुछ भी फूड वगैरह कुछ भी अगर एंटर किया, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है ना। डाइजेस्ट करके सेल को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको क्या करेगा, पूरी तरह से क्लीन कर देगा। और सुसाइड बैग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है ना, जैसे इसमें जो एंजाइम्स रहते हैं, ये सेल के जो, ये सेल के अंदर ही इसमें जो एंजाइम्स रहते हैं ये लाइजोसोम्स में, वो क्या करता है, जैसे इसका सेल क्या हो गया कि बस्ट हो गया, है ना, क्या होगा, अगर डैमेज हो गया सेल, क्या हो गया, डैमेज हो गया, फूड मतलब बस्ट हो गया, तो ये क्या करता है, ये वही सेल को, ये अपने ओन सेल को ही क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। ये अपने ओन सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये अपने ही सेल को, जो खराब सेल है ना, उसको क्या करेगा, साफ करने के लिए वो उसी को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग। क्लियर, लाइजोसोम्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि लाइजोसोम्स क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, सेल को क्लीन रखता है। कैसे क्लीन रखता है, इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी गंदगी होता है उसको क्या कर देता है, वो एंजाइम्स क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और सेल को क्या करता है, क्लीन रखता है, ठीक है ना। सेल को क्या करेगा, क्लीन रखेगा। ये अपने खुद ही सेल्स को क्या कर लेता है, जो भी डैमेज सेल्स होते हैं उसको वो खुद ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर, that's why it is called as suicide bags also. I think this lysosomes is clear to all of you, है ना। okay, तो our next topic is mitochondria, है ना। see, तो this mitochondria I'll explain you in our next video. okay, thank you students. So all of you see, once I'll give you the quick revision in this again, है ना। see what we have studied, cell organelles, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और लाइजोसोम्स, ठीक है। क्या क्या पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और लाइजोसोम्स पढ़े, ठीक है। सी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं क्या बताई थी कि ये लार्ज नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर था, बताई थी, ऐसे करके स्ट्रक्चर रहता है ना,
इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस, और ये दोनों को क्या करता है, ये जॉइन कर जोड़ देता है यहाँ से, है ना, ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ट्यूब शेप होता है, ये शीट्स रहता है, सिस्टर्ने रहता है, वेसिकल्स रहता है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या थे वो, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता था, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड और फैट्स मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इज इट क्लियर, है ना। ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ गोल्गी अपैरेटस, तो दिस वाज गिवन बाय, कौन डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी डिस्कवर किए थे। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये पैरेलली अरेंज्ड होता है, इस तरह से मैं बताई थी, ऐसे करके पैरेलली अरेंज रहता है ना, स्टैक्स में अरेंज रहता है, जिसको हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। और ये भी किसका कंसिस्ट रहता है, वेसिकल, सिस्टर्ने और वैक्यूल्स का कंसिस्ट रहता है, और इसमें 2 फेसेस होते हैं, जो न्यूक्लियस के साइड रहता है उसको सिस बोलते हैं, जो कि इस तरफ रहता है उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। ये भी पैकेज करता है प्रोडक्ट वगैरह को। और क्या है, थर्ड वन इज लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या था, लाइजोसोम्स में क्या होते हैं, ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करते हैं, जो कि जो भी गंदगी रहता है सेल को, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। सब सेल्स को क्या करेगा, जो भी अगर ख़राब है उसमें कुछ भी फूड वगैरह, जो भी अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ एंटर भी कर दिया है ना, तो वो क्या करेगा कि ये क्या करता है, जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इस तरह से लाइजोसोम्स होता है, तो इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अगर वो बस्ट हो जाएगा तो वो खुद भी अपने सेल्स को क्या कर देता है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेता है, और कुछ भी सेल में अगर कुछ भी ऐसा है ना, उसको क्या करेगा, क्लीन कर देगा और सेल को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। तो दिस इज अवर लाइसोसोम्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स। 3 are left, mitochondria, plastid and vacuoles, that I will explain in our next video. So thank you students, good day.